Good afternoon to all of you. Am I audible, sir? Yes, sir. Okay. Myself, Professor Amol Rajesh Shirke from Vishwabhushan Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Model Degree College, Ambedkar. I'm here to deliver welcome note and introduction of our resource person. Yesterday on 7 September 2020, are both model colleges from University of Mumbai, Model College Tayare, which is known as Vijayalakshmi Vishwanath Darvi Model Degree College Tayare, and Dr. Babasaheb Ambedkar College, Model Degree College, Ratnagiri. We started a revolutionary online lecture series as we are suffering from COVID-19 pandemic, and this is the ray of hope for the educationists, especially from our Konkan region, who are enrolled with University of Mumbai and placed in Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga, and Palghar district. All the students are opportunate on 2 days. Today is the second day of this online lecture series, and I'm glad to introduce you a expertise, a well-known resource person, author of more than 5 books and a huge experience of 15 years, my friend, Dr. Sachin Vilas Acharikar, sir. Sir, welcome. Thank you, sir. Okay. Acharikar sir has qualified NET set and a PhD holder. Sir, as well as guiding many PhD students for University of Mumbai. Acharikar sir is working with KJ Somaiya College, Mumbai, and having several research papers on the platform of national and international publication with ISBN and ISSN. Acharikar sir also having a responsibility as a member of board of studies for many colleges in Mumbai University. This is a huge privilege for me to introduce you, sir. Over to you. Thank you, sir. Thank you. So very good afternoon to one and all. As far as my information is concerned, all the students of TY BAF from Konkan, that is Sindhudurg, Ratnagiri, and even from Thane region has joined the session. The topic which is being allotted to me is of introduction to taxation, that is indirect taxation, and introduction to GST. As sir has already told me, he said that we will be having a students from Konkan and Sindhudurg region. It will be better if you communicate with them in English as well as Hindi and even in Marathi too. But I will deliver the whole session in Hindi as well as in English. I hope not even a single student will be having a problem if I use Hindi term. Thank you. So today, before coming with the introduction to GST and introduction to taxation, first of all, I just want to show the syllabus what University of Mumbai has framed for TY BAF students. First, we will go through the syllabus and what content we are going to discuss today. Then we will start accordingly. This is the Unit 1 module which has been given to me. Basis for taxation. Under that, we are going to discuss about direct tax and indirect tax for today's session. Features of indirect tax, what is the difference, advantages, disadvantages, and what are the sources and authority of taxes in India. Article 246 of Indian Constitution Act, and then after we will be starting with introduction to GST. The main object of this session from my side will be just to clear the concept of the students, what is indirect tax and what is introduction to GST. If any students is having any problem related to basics to indirect tax and introduction to GST, your doubts will be definitely entertained. You are likely to put your doubts in the chat options so that it can be resolved as and when I will be there after the end of the session. So it is my humble request. All the doubts will be resolved only at the end of the sessions. Now, so let us start with introduction to taxation. This is the core part of indirect tax. First of all, students should understand
कि what is direct tax and what is indirect tax. As you all people have done as a direct tax as a full subject in your semester 3 as well as in semester 4. So before starting with indirect tax, first of all, we should know what is the difference between direct tax and indirect tax. Direct tax और indirect tax में दोनों में क्या differences होता है? First of all, we have to understand that. So I have just framed the notes as if it's a question answer format, as we all prepare for university exams in a question format, question answer format. So I tried so that it can be easy for the students also. So whenever I'm delivering the sessions, so they can understand this whole concept easily and quickly. Now, first question is, what is the difference between direct tax and indirect tax? Direct tax and indirect tax में क्या difference होता है? First of all, we have to understand that. सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स होता है जो नॉर्मली पर्सन की इनकम पे चार्ज किया जाता है. रिमेंबर वन थिंग, आप लोग ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है. इन दैट केस वी हैव अर्न द इनकम. देयर वर 5 having in your syllabus in semester 3, that is income from salary, income from house property, income from business and professions, income from other source, and as well as income from capital gain. You might have seen that ये सारे इनकम जब पर्सन अर्न करता है तो वो वट एवर द इनकम ही इज अर्निंग इन द प्रीवियस ईयर, ही इज लाइकली टू पे द टैक्स इन द करंट असेसमेंट ईयर. सो रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जो हम लोग पर्सन पे लेवी, पर्सन के इनकम पे लेवी करते हैं. पर्सन के इनकम पे लेवी करते हैं मीन्स द पर्सन हु अर्न्स द इनकम्स आर लाइकली टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इज डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनकम अर्न करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है. दैट इज इटसेल्फ a simple example of direct tax. So direct tax का मतलब क्या होता है? वो टैक्स जो पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है, वेल्थ पे चार्ज होता है. आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? So that also we will discuss with an example, don't worry. So first of all, you understand what is direct tax and what is indirect tax. So direct tax is very simple, it's levied on person income और वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, योर एम्प्लॉय डिडक्ट द टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट directly from your incomes. What is indirect tax? Indirect tax क्या होता है सर? The indirect tax वो टैक्स होता है जो पर्सन अर्न जरूर करता है बट अपने इनकम पे टैक्स कभी भी खुद नहीं पे करता है, खुद पे नहीं करता है. सर who pays the indirect tax? Indirect tax is normally paid by a person who consume goods and services. Who consume goods and services. Very simple example. I'm a dealer. I'm a dealer dealing in goods. मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस गुड्स में डील करता हूँ. अगर मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया, अगर मैं अपने गुड्स किसी कस्टमर को सेल कर देता हूँ तो मैं कस्टमर से पैसे लेता हूँ, बट ऑब्वियसली आई एम अर्निंग द प्रॉफिट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज व्हेनेवर आई एम अर्निंग सेलिंग एनी गुड्स टू द कस्टमर, वो गुड्स जो कंज्यूम वो कस्टमर करेगा उससे मैं टैक्स लेता हूँ और बाद में गवर्नमेंट को पे करता हूँ. तो बेटा जीएसटी अंडर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, tax is directly levied on of those person who consume goods and services and indirectly paid to the government. For example, simple, यहाँ पे businessman goods customer को सेल कर रहा है. नंबर वन, जब भी वो गुड्स कस्टमर को सेल करेगा, कस्टमर से पैसे अर्न कर रहा है, बट बेटा वो कभी भी खुद से टैक्स नहीं पे करेगा, वो कस्टमर से रिकवर करेगा और बाद में गवर्नमेंट को दे देगा. सो यहाँ पे बिजनेसमैन अपना टैक्स किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है और उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है. ये हमेशा ध्यान देना. सर अभी सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज प्रोग्रेसिव. डायरेक्ट क्या है? प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे कमाओगे, फॉर एग्जाम्पल एज यू ऑल नो अंडर डायरेक्ट टैक्स अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स. But when you earn 5 lakhs, you will be required to pay tax. When you earn 10 lakhs, you are required to pay more tax. You are required to pay more tax on 10 lakhs as compared to 5 lakhs. But if you earn 15 lakhs, still you are likely to pay more tax as compared to 10 lakhs and 15 lakhs. So progressive means what? जितना ज्यादा पैसा आप कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. ये डिसएडवांटेज है डायरेक्ट टैक्स का, बेटा ध्यान देना. डायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव होता है. रिग्रेसिव मतलब भले आप अमीर हो या गरीब हो, इवन इफ यू आर रिच और यू आर पुअर, ऑल आर लाइकली टू पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स. भले एक होटल में अगर खाना खाने के लिए कोई मिडिल क्लास का पर्सन जाता है, पुअर क्लास का पर्सन जाता है या रिच क्लास का पर्सन जाता है और वो सेम खाना कंज्यूम करता है, तो सारे लोगों को सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है. इट इज वेरी वेरी क्लियर.
सो रिग्रेसिव में क्या होता है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रिच एंड पुअर, जो डायरेक्ट टैक्स में होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है, तू अमीर है, चलो ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा टैक्स पे कर। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि आप अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हो जिसपे जीएसटी लगता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा या टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ डायरेक्ट टैक्स इज नॉर्मली फॉल ऑन द पर्सन, वो पर्सन पे फॉल होता है जो पैसे कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसे कमाए, मुझे टैक्स पे करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, मैंने पैसे कमाए पर टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, टैक्स कौन पे करेगा, जो पर्सन गुड्स को कंज्यूम करेगा, ये ध्यान देना है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल भी है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स। नाउ आप लोग सारे बच्चे लोग सोच रहे हैं सर व्हाट डू मीन वेल्थ टैक्स, हमने वेल्थ टैक्स तो कभी सुना नहीं। बेटा वेल्थ टैक्स वो टैक्स होता है जो नॉर्मली हम लोग अपने वेल्थ पे करते हैं। आप बोलोगे सर वेल्थ का एग्जाम्पल आप दोगे, यस, वेल्थ में आपका बैंक डिपॉजिट्स आता है, बैंक डिपॉजिट्स में वेल्थ टैक्स में आता है, शेयर्स आता है, आपके वेल्थ टैक्स में शेयर्स आते हैं, बैंक डिपॉजिट आते हैं, कैश आता है, पर्सनल कार आता है, रियल प्रॉपर्टी आता है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, हमारे इंडिया में वेल्थ टैक्स हर कोई नहीं पे करता, हर कोई नहीं पे करता। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा वेल्थ टैक्स इन 2016 2016 को निकाल दिया गया, बट उसके जगह पर हमारी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में उसको एज अ सब चार्जेस करके इंक्लूड किया। वेल्थ टैक्स सिर्फ एक बार दिमाग में रखना है, वेल्थ टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय ओनली रिच क्लास पीपल, नॉट बाय मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास पीपल। इन शॉर्ट इफ आई कैन से, इफ द पर्सन हैविंग इनकम मोर देन 1 करोड़, तो सब चार्जेस पे करना पड़ता है, सर चार्जेस पे करना पड़ता है। तो वेल्थ टैक्स इज रिप्लेस बाय द सर चार्ज। Income tax, you have already done in your income tax, direct tax, that is income from salary, income from house property, income from like a business or profession, income from other source, capital gain. These all are the part of income tax. If I talk about CST, VAT, service tax, STT, ये सारे के सारे निकल के, ये सारे के सारे निकल के। I just want to give the example, so I have added this example here. Now इनको रिप्लेस किसने किया है सर, इनको रिप्लेस किया है जीएसटी। हमारे इंडिया में आज भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है, आज भी हमारे इंडिया में कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है। तो वी वोंट बी सेइंग दैट 100% जीएसटी हमारे इंडिया में आया हुआ। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। तो जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है उस प्रोडक्ट पे नॉर्मली एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है। कस्टम और एक्साइज क्या होता है, ये सेम सिलेबस कस्टम्स यू आर हैविंग इन सेमेस्टर 6 आल्सो। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स मिनिमाइजेशन करना, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इविएशन इज पॉसिबल, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इवेशन इज नॉट पॉसिबल। टैक्स इवेशन मतलब आप अपने टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हैं बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाय इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज एंड so on. But under indirect tax, you cannot avoid your indirect tax. You cannot avoid your indirect tax. Why? Because whenever you are buying any product, आप क्या करते हो, परचेज करते वक्त उस परचेज पर्टिकुलर गुड्स को और सर्विस को परचेज करते वक्त उसी समय आप क्या करते हो, उसी टाइम पे क्या करते हो, टैक्स पे कर देते हो। सो टैक्स एविएशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स एविएशन का मतलब क्या होता है, टैक्स एविएशन का मतलब होता है कि आप जो भी इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो बाय डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स एंड यू विल बी गेटिंग अ डिडक्शन एज पर सेक्शन 80, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शंस बोलते हैं। Tax evasion is not possible in case of indirect tax because you are likely to pay the tax whenever you purchase the goods and services. Now, inflation. Inflation, direct tax always help in reducing the inflation. Direct tax से कभी भी महंगाई नहीं बढ़ती, inflation नहीं बढ़ता. But in case of indirect tax, their indirect tax promote करता है inflation. Sir, कैसे promote करता है inflation? I hope you might be knowing about GST का percentage. Take an example. एक simple example में ले रहा हूँ. Let us assume एक product है जिसके ऊपर 5% GST चार्ज होता है, 5% GST चार्ज होता है। I'm talking about indirect tax. अभी गवर्नमेंट को लगा कि मेरे को भी थोड़ा टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना है, तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट फ्रॉम 5% to 12% एंड कलेक्ट मोर टैक्स। अभी जब ये 5% से 12% जीएसटी हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोडक्ट या गुड्स बोलो या सर्विस बोलो वो बाय डिफॉल्ट महंगा हो जाता है। एंड हु इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, इट इज द ओनली फाइनल कंज्यूमर हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैक्स रेट फ्रॉम 5% to 12%। तो इन्फ्लेशन हमेशा बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ता है। नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। नाउ जैसे हमने इन्फ्लेशन देखा, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट।
Remember one thing. On whom the direct tax is imposed? It is imposed on individual, it is imposed on HUF, it is imposed on company, it is imposed on farm. Whereas indirect tax is imposed on those consumer. Remember one thing, it is imposed on those consumer who consume goods and services. अगर आप कंज्यूमर हो, आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की है, कंज्यूम का मतलब सिर्फ कंज्यूम नहीं, उसको अगर आप यूज भी करते हो, कोई फैसिलिटी भी लेते हो, कोई बेनिफिट भी लेते हो, तो एमिनिटीज यूज करते हो, तो उसके ऊपर आप जो भी पैसे देते हो उसके पीछे आपको टैक्स पे करना पड़ता है. अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, tax is collected from those consumer who are consuming goods and services. ये ध्यान देना. बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. अगर आपने पैसे कमाए तो आपको ही टैक्स पे करना है, आपका टैक्स और कोई थर्ड पर्सन नहीं पे करेगा. बट अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, पर टैक्स कैन बी पेड बाय द थर्ड पर्सन. जैसे मैंने आपको बताया सर, टेक एन एग्जांपल, आई एम अ डीलर, मैंने कंज्यूमर को गुड सेल किया, पैसे मैं कमा रहा हूँ, बट कस्टमर टैक्स किससे कलेक्ट कर रहा हूँ? कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूँ. अगर मैंने कस्टमर से कलेक्ट करके किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे किया, तो ऐसे केस में वो टैक्स, मेरी टैक्स लायबिलिटी मैंने कस्टमर पे शिफ्ट की. So tax liability can be shifted only in case of indirect tax, but tax liability cannot be shifted under indirect tax. So under direct tax, if you earn the income, you have to pay your own tax. You cannot ask third person to pay the tax. But under GST, under indirect tax, you can shift your tax liability to third person. And who are the third person? Whoever will be consuming the goods and services. ठीक है बेटा. डायरेक्ट टैक्स बहुत कॉस्टली होता है कलेक्ट करने के लिए, बहुत कॉस्टली होता है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन लमसम बेसिस. पूरे साल वॉट एवर द इनकम ही अर्न्स, ही पे ऑन अ लमसम बेसिस. बट ऑब्वियसली किसी पर्सन को एक बड़े से अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना अच्छा नहीं लगता है, एंड हमारी गवर्नमेंट को बहुत एफर्ट लेना पड़ता है टू कलेक्ट द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट सोर्सेज. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट सोर्स, इट इज वेरी इजी एंड चीप टू कलेक्ट. गवर्नमेंट को एक भी पैनी का मेहनत करना नहीं पड़ता है. Whatever the product we are purchasing, whatever the product we are consuming, we are paying at the time of purchase of that particular goods. जब भी हम goods purchase करते हैं तो purchase करते वक्त ही वो टैक्स को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को कोई एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स. ये ध्यान देना है. डायरेक्ट टैक्स इज हैविंग अ वेरी नैरो कवरेज बिकॉज देयर आर हार्डली फ्यू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस. बट इन केस ऑफ indirect tax, there are huge number of products. हमेशा ध्यान देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, या बोथ के ऊपर. बोथ मतलब देयर आर डीलर्स हु प्रोवाइड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, बोथ, दोनों के दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली, मैं मोटा छोटा फिगर बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 150 गुड्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है. 150 गुड्स पे एग्जाम्प्ट किया हुआ है, बाकी सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है. बट वेयरएज एज फार एज सर्विसेज इज कंसर्न, आप लोगों को सेक्शन 11 होगा एग्जाम्पशन में, यही सेम सब्जेक्ट्स में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 90-95 सर्विसेज एग्जाम्प्ट करके रखी है. बाकी सारे के सारे सर्विसेज पे क्या लगता है? जीएसटी चार्ज होता है. आई मीन टू से इनडायरेक्ट चार्ज, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है. सर अगर आप एग्जाम्पल लोगे इसका, तो डायरेक्ट टैक्स का तो इनकम टैक्स जो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्स का वैट है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज है. बट बेटा मैंने जैसे बताया कि वैट, सीएसटी एंड सर्विस टैक्स इज हैज बीन रिमूव्ड एंड उसकी जगह पर रिप्लेस क्या हो गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे अंडर जीएसटी. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो पर्सन अर्न करता है, उसको अपने पूरे इनकम से जो अर्न किया उसमें से पे करना पड़ता है. ही कैन नॉट शिफ्ट हिज टैक्स लायबिलिटी थर्ड पर्सन. अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, tax is collected by a person from whom he collect the consumer who consume the goods and services. डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ता है. इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? अगर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को चेंज करेगा. इफ यू चेंज द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम 5% to 12%, from 12% to 18%, by default what will happen? Inflation will increase. Now next question, when I just given a brief about difference between direct tax and indirect tax. Now we will go in depth what is indirect tax. If you see whatever we have discussed and distinguished between, everything I have added over here. So मैं just एक बार go through करूंगा. Indirect tax सर वो टैक्स होता है जो पर्सन के ऊपर लेवी किया जाता है. वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो पर्सन जो गुड्स और सर्विस, अगर अपनी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किया, आपके ऊपर टैक्स लगेगा. कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा.
and paid indirectly to government. बेटा कंज्यूम एज अ कंज्यूमर कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, बट टैक्स कौन पे कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है, प्रोफेशनल कर रहा है, जो उसको सर्विसेज देता है, जो उसको गुड्स बेचता है, सेल करता है, ये ध्यान देना। ठीक है। Now, why it is regressive? It is regressive because every person, whether you are rich, whether you are poor, there is no differentiation of income. आप पैसे कमाते हो नहीं कमाते, even a small child taking a candy means chocolate भी खरीदता है तो उसको भी GST लगता है. Therefore, it is called as a regressive. Now, small child is not earning income, but still is paying tax. That is in form of indirect tax. So it is regressive in nature. It never depends upon the income what you earn. Now, इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो प्रमोट इन्फ्लेशन. इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी थर्ड पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं. ये बहुत इजी है कलेक्ट करना, क्योंकि कस्टमर जब भी कोई गुड्स परचेस करता है या कोई भी सर्विसेज अवेल करता है तो इनडायरेक्ट टैक्स वो उसी समय पे करता है. एंड इवन गवर्नमेंट हैज टू टेक अ वेरी लेस पेन फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट को बहुत इजीली आ जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स. इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड करना इज नॉट इजी. बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड करना बहुत इजी है. ठीक है. नाउ सर, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स है? इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है परसेसिव. परसेसिव का मतलब क्या है? परसेसिव का मतलब एवरी पर्सन. परसेसिव मतलब एवरी पर्सन. हमारे इंडिया में कोई भी पर्सन कहीं पे भी रहता है, कहीं पे भी रहता है, भले वो रिच है भले वो पुअर है. इवन इफ ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज लायबल टू पे जीएसटी, he is liable to pay indirect tax. ये ध्यान देना, he is liable to pay too. Even a child, देखो उसने यहाँ पे मेंशन किया, even a child purchasing candy comes under the purview of tax. Even a small child is not even earning a money, he is likely to pay tax because he is buying the chocolates. So pervasive means whether you are rich, poor, earning income or not, you are likely to pay the tax. So pervasive means it is applicable to every person. डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स. बेटा हमारी गवर्नमेंट ने जब भी टैक्स जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट प्लानिंग किया था, दे हैव कीप्ट इन माइंड कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. ऐसे प्रोडक्ट्स है जो बहुत नेसेसिटी है. नेसेसिटी मतलब लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब नेसेसिटी प्रोडक्ट है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम लो रेट ऑफ टैक्स लगा दिया. लो रेट ऑफ टैक्स, इट कैन बी जीरो रेटेड टैक्स, इट कैन बी जीरो टैक्स, 0% टैक्स. और देर आर सर्टन गुड्स विच आर वेरी लग्जेरियस like AC है, कार है, these all are luxurious goods. Luxury goods like sun goods, like tobacco, alcohol, luxury cars always have high rate of tax. but अगर आप ऐसे goods को consume करोगे, आपको GST हमेशा ज्यादा लगेगा, indirect tax हमेशा ज्यादा लगेगा. बट अगर आप essential goods purchase कर रहे हो, essential goods consume कर रहे हो, just like books है, vegetables है, fruits है, then normally you'll be having very reasonable rate of tax. It can be 0% also, nil rated, or you can say even 5% also. The rate of tax on these essential goods are very very less. Under indirect tax, आप अपना टैक्स का बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. जैसे नॉर्मली कोई भी डीलर गुड्स बेचता है तो टैक्स का बर्डन नॉर्मली अल्टीमेट कंज्यूमर के पास आता है, जो कंज्यूमर गुड को कंज्यूम करता है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स से नियरली 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से आता है. 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स. बेटा जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, वाइडर टैक्स बेस मींस व्हाट? अंडर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन सिलेक्टेड एरियाज ओनली. दे आर नॉट हैविंग एन नंबर ऑफ एरियाज. बट अंडर जीएसटी, अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज चार्ज ऑन एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट मोटा छोटा फिगर बता रहा हूँ मैं, अप टू 150 गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है. अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% सर्विस पे जीएसटी नहीं चार्ज होता है. सर्विसेज के जो सिलेबस है आप लोग ऑलरेडी सेक्शन 11 में आप पढ़ोगे. एग्जाम्स में भी इसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आता है. तो वहां पे भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 90 to 95 सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, and rest of the services are covered under indirect tax. Inflationary, बेटा अगर आप GST गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी, if government increases GST percentage, so what will happen? The GST रेट बढ़ाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कमोडिटी कॉस्टली हो जाएगा. अदर फीचर्स, इसका अदर फीचर क्या है? नॉर्मली ये गुड्स और सर्विसेज पे ही चार्ज किया जाता है, इनकम पे चार्ज नहीं किया जाता. अगर आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करोगे, अवेल करोगे, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा. ये ध्यान देना. नाउ सर, व्हाट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है?
जब भी हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें पढ़नी, हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें पढ़नी। सो इनडायरेक्ट टैक्स कन्वीनियंट है, गवर्नमेंट बोलता है बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करते वक्त हार्डवर्क करना नहीं पड़ता है, कस्टमर परचेस करते हुए कि ये टैक्स पे कर देता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स आर वेरी मच कन्वीनियंट, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो टैक्स मिल जाता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो टैक्स मिल जाता है, किससे? कंज्यूमर से, वेन एवर द कंज्यूमर बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये ध्यान देना। डिफिकल्ट टू एविएट, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट को पता है कि कंज्यूमर चाहे तो भी ये टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकता, ये टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकता, बिकॉज वो टैक्स कभी पे करेगा? ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कमोडिटी, ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कमोडिटी। जब भी वो कमोडिटी परचेज करेगा ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा ही करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू एविएट, टू रिड्यूस और टू मिनिमाइज indirect tax. Wide coverage, direct, indirect tax are collected from many sources. As like under direct tax, it is not happening. But at indirect tax, you can collect the taxes from goods also, as well as services also, as well as those person or those dealers who are providing both the services. ठीक ठीक है ना? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स इलास्टिक होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? as you know, now India is facing, the whole India is facing problem right from the March itself. Almost all business has been closed down, all the business has been closed down. Many businessmen, many common people are suffering because of this problem. I don't feel government will always try to see to increase the tax revenue. Government abhi tax rate nahi बढ़ाएगा, because government को पता है किसी के पास भी पैसा नहीं। Even a common man is suffering, common man is suffering, who is doing business, who is not doing business, who is doing job, everyone is suffering. But once we overcome this problem, government also having lot of losses during this tenure. अभी ये लॉस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाएगा। गवर्नमेंट कैसे टैक्स रेट बढ़ाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 5% है। अब ये लॉस, जितना भी नुकसान मार्च से लेकर अभी आने वाले टाइम तक, कब तक ये प्रॉब्लम चलता है, उसके बीच में जो भी लॉस हुआ है, अब ये लॉस गवर्नमेंट क्या करेगा? रिकवर करेगा। किससे रिकवर करेगा? हम लोगों से रिकवर करेगा। हाउ कम गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिकवर? गवर्नमेंट क्या करेगा? 5% की जगह 12% जीएसटी बढ़ा देगा। 12% जिस प्रोडक्ट पे चार्ज होता है उस पर 18% कर देगा। जिसपे 18% जीएसटी चार्ज होता था उस पर 28% चार्ज करेगा। ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर लॉस को रिकवर कर लेगा। यूनिवर्सल, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है। आप ऐसे नहीं होगा आप महाराष्ट्र में उसलिए इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दो। आप किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाओ, आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाता है। इट बिकम्स अ कंपलसरी फॉर यू टू पे द इनडायरेक्ट टैक्स। सो इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स इज, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पैटर्न, बट हमारा गवर्नमेंट क्या करता है? हमारे गवर्नमेंट्स क्या करते हैं? दे आर चार्जिंग ह्यूज रेवेन्यू, huge tax on those goods which are luxury. There are companies who are producing only and only luxury and expensive goods, only and only luxury and expensive goods. But government want them to produce which type of goods which are essential, for the common people. So what government does, गवर्नमेंट ऐसे गुड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू चार्ज करता है। तो इससे क्या होता है? कंपनी को ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, कंपनी इज नॉट गुड गेटिंग गुड कस्टमर्स, दे आर नॉट बी वोंट बी एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो क्या सेंस बनता है? तो इवन समटाइम कंपनी थिंक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अलोंग विद लग्जरी गुड्स सम एसेंशियल गुड्स, जहां पे उनको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? ज्यादा टैक्स लग्जरी गुड्स के ऊपर चार्ज करता है, मोर एक्सपेंसिव गुड्स के ऊपर चार्ज करता है, और गवर्नमेंट उन बिजनेसमैन को डाइवर्ट करता है अदर सेक्टर्स में भी, जो क्या करे? नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस करे। ये ध्यान देना। नाउ as we all know, those person who earns huge amount of income, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, डायरेक्ट टैक्स में उनको बहुत ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है। बट अंडर इनडायरेक्ट टैक्स आप पैसे ज्यादा कमा रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका मोटिवेशन कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज यू नो वॉट एवर द इनकम यू आर गोइंग टू अर्न अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। यू आर गोइंग टू पे रीजनेबल टैक्स। मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी। So the person who earns the income under indirect tax never get demotivated. He will always be more motivated to earn more and more income out of it. देखो, where I have mentioned, indirect tax may not affect the motivation of the worker to work and save, since most of the indirect tax
are not progressive in nature. Progressive means when you earn more income, he's likely to pay more tax. It is not happening in case of indirect tax. It is happening only in case of direct tax. So individual may not mind to pay them. ये ध्यान देना. In other words, indirect tax are generally regressive in nature. Regressive means it is paid by everyone. It is rich or poor. Even if you are not earning income, you are likely to pay. So the may not motivated to work and save. I'm talking about those people who are earning huge amount of income from their business and profession. They will never be demotivated because उनको पता है कि वो जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ खुद के लिए कमा रहे हैं. उसमें से हार्डली उनको टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. But under indirect tax, maximum tax revenue they are collecting from the customers and paying to whom? They are paying to the government. That is indirect. मोर ओवर इंपॉर्टेंट इसकी अच्छी बात करें तो गवर्नमेंट हमेशा बोलता है कि हम लोग जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं इट इज ओनली फॉर सोशल पर्पस सोसाइटी के लिए कलेक्ट करते हैं. जो भी पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं अंडर टैक्स रेवेन्यू इट इज यूज फॉर एजुकेशन, इट इज यूज फॉर हेल्थ, इट इज यूज फॉर फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे टैक्स रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट किसके लिए यूज करती है? सोसाइटी के लिए, इंडिया चलाने के लिए. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है. Flexibility, as I already mentioned, that government, it is the rights of government to change the rate of tax. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स रेट को कम करना है वो कर सकता है, ज्यादा करना है वो कर सकता है. So under indirect tax, government can change the rate of tax of the commodity depending upon demand and supply also. And beyond का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है proportionately more than increase in national income and national output. ये ध्यान देना. So flexibility and buoyancy का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को जब भी लगता है फ्लेक्सिबल अपने टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, they can do that. They can do that with association of GST, in association with GST Council, and at the same time they can also beyond का मतलब होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू ज्यादा चार्ज करता है proportionately over national income as well as in the output also. Broad base, GST is not collected from selected sources, they are collected from many sources. Now we are thinking from indirect tax point of view. There is the disadvantages point of view. Now here we have to just think about the disadvantages. Indirect tax के disadvantage क्या है? मुझे टैक्स पे नहीं करना है तो I will just talk negative about indirect tax. सबसे पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का नेगेटिव क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर. गवर्नमेंट बोलता है देखो क्या करेगा, गरीब लोगों को भी सेम रेट ऑफ टैक्स पे करता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज टैक्स का पॉलिसी वैसे बना है. टैक्स का प्रिंसिपल ही वही है कि अगर आपने गुड्स कंज्यूम किया दे विल नेवर सी वेदर यू आर रिच एंड पुअर, दे विल चार्ज द टैक्स. सो इवन अ रिच पर्सन विल बी पेइंग सेम अमाउंट ऑफ टैक्स व्हाट poor people will be paying on consuming the same commodity or same services which he availed what rich consumer availed. So regressive in nature ये disadvantages है. गवर्नमेंट ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि अमीर और गरीब के ऊपर टैक्स उस हिसाब से चार्ज करना चाहिए जिस हिसाब से उनकी इनकम है. पर गवर्नमेंट ने अंडर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे नहीं सोचा. बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं जीएसटी रेट बढ़ने से या इंडेक्स रेट बढ़ने से उनके कंजम्पशन इफेक्ट हो जाएंगे. अगर 0% है indirect tax, so nobody will bother to buy the commodity. But if the tax rate increase from 0% to 5%, 5% to 12%, people like middle class people come from poor class people will think number of times before buying the particular goods. Sometimes they may postpone the purchases. Postpone the purchase मतलब परवड़ नहीं रहा है. Now it is not affordable to buy the product. We will better be purchase later on. We'll later on purchase it. तो बेटा इससे क्या होगा, इससे उनके कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा. और बहुत सारे बायर तो परचेज भी नहीं करेंगे, बहुत सारे बायर्स तो परचेज भी नहीं करेंगे. आई हैव ऑलरेडी मेंशन द कंज्यूमर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास ग्रुप मे डिले देयर परचेज और दे मे नॉट बाय एट ऑल. बेटा इससे क्या होगा, इससे उनके कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा. व्हाट इज गोइंग टू इफेक्ट इट? उनके कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा. लैक ऑफ सोशल कंसाइजनेस. नोबडी नोज इफ गवर्नमेंट कलेक्ट्स द रेवेन्यू, nobody knows whether it is really used for social cause or not. It is used for social cause or not. Nobody bother also because हम जब भी indirect tax pay करते हैं तो हमको खुद को नहीं लगता कि हमने tax pay किया. I feel many people don't know whenever they are buying any goods, whether they are getting any services or availing any services, they are paying tax together with that services. Therefore, they are also least bothered कि whatever the tax revenue government are collecting, is it really used for social cause? So people are also having lack of social consciousness toward that particular tax revenue. Uncertainty, sometimes government inflationary. Uncertainty, indirect tax are rather uncertain.
Sometimes government may get more revenue, sometimes government get less revenue. Now during this problem what India is facing right from March, uh, Amol sir is सर आवाज Amol आप sir, नहीं। is my I'm live because what Yes. happened at my place there is a electricity issue, so that's why I'm asking. There is no internet problem, sure? सर नो इंटरनेट प्रॉब्लम। Okay, fine, fine, fine. Thank you, sir. Now, uncertainty. Uncertainty means, as you all know, India is facing a lot of problem. Government will never think of collecting tax, higher tax revenue. So what will happen right now? Government is getting very less tax, very less tax. आपने देखा भी देखा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू का कलेक्शन आया नहीं है, इसलिए वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रन महाराष्ट्र स्टेट. So these are the problems, and once we overcome this problem, what will happen? Government will start collecting good revenue from tax rate by increasing the tax revenue. So indirect tax क्या होता है? ये uncertain होता है. Inflation, but obvious है. Indirect tax से क्या होता है? सारी चीजें महंगी हो जाती है. टैक्स रेट बढ़ने से सारी चीजें कॉस्टली हो जाती है. इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स से हर चीज, इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज गिव राइज टू द इन्फ्लेशन. पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एविएशन, हार्डली इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. अगर कोई बचाना भी चाहे तो भी नहीं बचा पाएगा टैक्स. ही हैज टू पे. सो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ डिसएडवांटेजेस बिकॉज टैक्स एविएशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. Now we are going to just, since it is in the syllabus, so I'm telling you what about the sources and authority of taxes. There are three type of list: union list, state list, and concurrent list. These are the three type of lists we have. Now what is union list? Union list means सिर्फ और सिर्फ central government or union government has a authority to frame the policies and plans. State government will never interfere in the union list. Again I'm telling, under union list, central government or union government has a right to frame any policy. State government will not interfere under union list. State list. Now what is state list? Under state list, state government will frame the policy, central government will not interfere. Under state list, if I want to give an example, I can give an example of agriculture. अगर कोई भी डिसीजन महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नेवर इंटरफेयर. अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एग्रीकल्चर से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो वो कर सकता है, बट गवर्नमेंट विल नॉट डू. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सेकेंडली, वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड भी क्या कर सकता है? कोई भी डिसीजन ले सकता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर. एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा रहेगा, आई गेस वन वीक बैक स्टेट गवर्नमेंट सेड कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी नया परचेस करते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी कम पे करना पड़ेगा. एंड इवन दे हैव रिड्यूस द स्टैम्प ड्यूटी. व्हाई? बिकॉज इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट वेयर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट विल नेवर इंटरफेयर. वेयर एज कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट हैव अ राइट. Concurrent list, I'm talking about third list. Under third list, state government have a right to frame the policy. But if central government feel that state government is not doing correctly or they are doing some mistakes, then central government या union government will interfere in the state list. Under concurrent list, state government have a power to frame the plan policies. If union government feels that state government are not doing anything correctly, then the union government will interfere. मैं best example आपको बता दूंगा. It's just my personal view. That's it. Education, as you all know, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्जाम्स मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंसिल कर दिए थे. बट सिंस एजुकेशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफियर्ड एंड सेड इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट द एग्जाम्स. सो कॉन्करेंट लिस्ट में एक एजुकेशन आता है. अगर एजुकेशन स्टेट लिस्ट में होता तो आज टीवाई के जो भी स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो अपीयर कर रहे थे, माइट हैव गॉट डायरेक्टली पासिंग सर्टिफिकेट इन देयर हैंड विदाउट अपीयरिंग सेमेस्टर 6 एग्जाम्स. बट नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफियर्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड दे हैव आस्क्ड टू कंडक्ट द एग्जाम्स व्हिच आर मे बी गोइंग टू हैपन इन द 15th of September onwards as per the schedule which Mumbai University will be giving. Now
This is what all about union list, state list, and concurrent list. So again, I'm repeating, it's not important for exam, just as a knowledge matter. I'm just for the sake of knowledge, I'm explaining. Under union list, union government has a power to make a law. State government will never interfere. Under state list, state government has a power to frame a law. Union government or central government will never interfere. But under concurrent list, like they have a power to take a decision related to education as well as forest. But if union government feel that state government are not doing correctly, then they may interfere. मैं recently एक simple example education का बता रहा हूँ. Maharashtra government has cancelled the exams. I'm not commenting whether it is correct or not. That is a different thing. But union government has interfered and made compulsory to conduct the exams. So this is the best example of concurrent list. Now, so this is just an overview of indirect tax. Now we will move to the direct GST. Introduction to GST. Now, what is GST? The GST होता क्या है? It's very, very clear. GST before introduction of GST हमारे इंडिया में VAT चार्ज होता था. VAT हमारे इंडिया में VAT चार्ज होता था and सर्विस टैक्स चार्ज होता था. VAT and service tax. VAT are collected by the state government. VAT are collected by state government or union territory. Is it right? And service tax are collected by the central government. Service tax are collected by the central government. Now these two tax come together. Now VAT is charged on goods. VAT is charged on goods and service tax is charged on services. अभी ये दोनों के दोनों साथ में आकर क्या बन गए? जीएसटी बन गए. That is goods and service tax. So now the concept what we earlier having under old provision VAT and service tax has been removed, and now instead of VAT, instead of service tax, what has taken place? हमारे इंडिया में जीएसटी आ गया. So how GST comes? GST comes, it just simply replaced goods अपना VAT as well as service tax. So what is GST? GST का मतलब क्या होता है? It is very clear, sir. Any taxes which charge on goods, any taxes which charged on goods or supply or both. But remember one thing. Goods or services, not supply. It is services. Goods or services or both. But that should be supply. वो supply होना चाहिए तो ही आप charge कर सकते हो, otherwise not. Article 366(2)(a) of Indian Constitution defines, उसने clearly define किया है, goods and service tax का मतलब होता है tax on supply. This is very important, very important. अगर वो supply है goods का और services का और both का, अगर वो supply है तो GST चार्ज होगा, otherwise not. पर GST चार्ज उसी supply पे होगा जो goods, सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट जीएसटी ये प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होता है. एक्सेप्ट का मतलब सर इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा. विथ व्हाट आर द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसका मतलब अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है. And at the same time, there are 5 petroleum products on which there is no GST. We are going to learn ahead also. So what is GST? What is GST? GST means tax. टैक्स चार्ज करेंगे सप्लाई पे, पर वो सप्लाई होना चाहिए. बेटा सप्लाई का डेफिनेशन आपको अलग से आगे पढ़ना है. अगर वो सप्लाई है और वो गुड्स का सप्लाई या सर्विस का सप्लाई या बोथ है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. बट वो जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर वो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो. ये ध्यान देना. जीएसटी पॉलिसी लाते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करने पड़े. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इवन स्टेट गवर्नमेंट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अर्लियर क्या था? वैट में हर स्टेट अपने अपने हिसाब से, वैट की बात करो, मैंने क्लियरली बोला था अंडर वैट स्टेट गवर्नमेंट आर चार्जिंग टैक्सेस. अंडर वैट each state government charging the tax as per their convenience. अगर महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल में एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी है, अगर महाराष्ट्र में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई कार महाराष्ट्र से खरीद रहा है तो रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल वैट ज्यादा लगता है. बट अगर वही कार वो गुजरात से खरीदेगा तो उसको टैक्स कम लगेगा. तो मैनी पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम महाराष्ट्र दे यूज्ड टू बाय फ्रॉम द गुजरात, क्योंकि टैक्स कम लगता था. बट अभी जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? अब महाराष्ट्र से खरीदो या कहीं से भी खरीदो, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टैक्स.
पर यहाँ पे एक स्टेट इफेक्ट होता था तो दूसरे स्टेट को उसका बेनिफिट मिलता था। पर जीएसटी के ऊपर आने के बाद जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन बेस्ड टैक्स? मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल होपिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल सर मुंबई का डीलर है, डीलर जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर, ही इज अ सप्लायर, he is a person in Mumbai supply goods to person stays in Kalyan। वो पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहा है और ये कौन है सर? ये कंज्यूमर है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में रेसिपिएंट बोलते हैं। टेल मी बोथ द पर्सन स्टेज इन सेम स्टेट? ये दोनों के दोनों पर्सन सेम स्टेट में है? हाँ सर, दोनों के दोनों सेम स्टेट में है। मुंबई के सप्लायर ने कल्याण के कंज्यूमर को गुड सेल किया। कंज्यूमर कहां पे? कल्याण में। ही इज कंज्यूमिंग द गुड्स एट कल्याण। मुझे बताओ गुड्स कहां पे कंज्यूम्ड हुआ सर? गुड्स महाराष्ट्र में कंज्यूम्ड हुआ। सो महाराष्ट्र हैव अ राइट टू कलेक्ट द जीएसटी। इससे ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट बिलोंग फ्रॉम द सेम स्टेट। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूं, मैंने कोई गुड्स खरीदा, वेरी सिंपल एग्जांपल, 10,000 उसकी वैल्यू है, राइट। नाउ उसके ऊपर लेट अस अज्यूम 12% का जीएसटी लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 6% मिलेगा। 12% का जीएसटी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 6%, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी गेटिंग 6% का जीएसटी। सो 10,000 6%, it will be 600, and the total value will be 11,200. Remember one thing, whenever there is a movement of goods within the same state, जो भी सीजीएसटी है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो भी एसजीएसटी है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ये ध्यान देना है। So whenever there is a movement of goods within the state, there is no problem of revenue. Problem happens when there is a transaction between two different states, like take an example, Mumbai se goods, Mumbai is a supplier, a person or a supplier who stays in Mumbai, उसने गुड्स सेल किया दिल्ली वाले को। नाउ हु इज दिल्ली वाला? दिल्ली में कंज्यूमर रहता है जिसको हम लोग रेसिपिएंट बोलते हैं, ये ध्यान देना है। सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, वन इज इन महाराष्ट्र एंड सेकंड इज इन दिल्ली। इट डजंट कम अंडर सेम स्टेट, ये दो डिफरेंट स्टेट में है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और बेटा हमेशा ध्यान देना, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है स्टेट गवर्नमेंट को। जब ये जीएसटी पॉलिसी आया था तो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50% का फॉर्मूला डिसाइड हुआ था। 50-50% का फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? मान लो अगर जीएसटी का रेट है 12%, तो इसमें 6% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 6% लेगा स्टेट गवर्नमेंट। बट प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम तब होता है सर जब ये गुड्स दो स्टेट के बीच में मूव होता है, लेट अस अज्यूम द सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, गुड्स ऑफ रुपी 10,000, जिसके ऊपर 6% क्या लगा? अभी जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स मुंबई से दिल्ली होता है, अगर विद इन सेम स्टेट होता तो मैं क्या करता? 6% सीजीएसटी चार्ज करता, 6% एसजीएसटी चार्ज करता। अगर वो सेम स्टेट में होता 600 एंड 600, अगर सेम स्टेट में होता तो इट वुड हैव बीन 11,200। बट क्या ये सेम स्टेट में है? क्या नहीं है सर, ये सेम स्टेट में नहीं है, ये दो स्टेट के बीच में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करता है, वो डायरेक्टली आईजीएसटी कलेक्ट करता है एट द रेट ऑफ 12%, that is 1,200 rupees, and the whole tax revenue goes in the account of central government के अकाउंट में जाता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को 50-50 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोज कि मैंने 12% डायरेक्टली खुद कलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो दो स्टेट के बीच में। आईजीएसटी कब कलेक्ट होगा? आईजीएसटी तब कलेक्ट होगा जब जो भी ट्रांजैक्शन या मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वो बिटवीन मूवमेंट ऑफ सर्विस होगा बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगा। देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस एंड प्रोविजन फॉर दैट।
नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करने के बाद टैक्स वो सोचेगा कि मुझे मुंबई वाले को टैक्स देना है या दिल्ली वाले को 50% टैक्स देना है। इसके लिए एक पॉलिसी बना जीएसटी में पॉलिसी बना कि जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा उस स्टेट्स को क्या मिलेगा, 50% पार्ट मिलेगा। सो भले गुड्स मुंबई से दिल्ली गया है, गुड्स कहां पे कंज्यूम्ड हुआ है, दिल्ली में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इस 1200 का जो 50% 600 रुपीज है वो दिल्ली गवर्नमेंट को देगा, ना कि मुंबई गवर्नमेंट को देगा। एंड देयरफॉर वी कॉल दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन कंजम्पशन GST is a consumption based tax. Why it is called as a consumption? जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड होगा वही पर्टिकुलर स्टेट को वो टैक्स मिलेगा। और ये प्रॉब्लम नॉर्मली कब होता है, जब भी दो स्टेट के बीच में होता है। अगर सेम स्टेट में है तो महाराष्ट्र, मान लो टेक एन एग्जांपल, बायर एंड recipient and supplier both are from Maharashtra state, there is no problem. Problem will be when the movement or when there is a interstate transaction between two different state, वही स्टेट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम्ड हुआ है। वैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, टैक्स विल बी पेएबल इन द स्टेट इन विच द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर फाइनली कंज्यूम्ड। जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम्ड हुआ वो स्टेट को मिलेगा। But as far as exports are consumed, exports are non-taxable. Now, why exports are non-taxable? मैंने क्या बोला, जीएसटी ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब लेट अस एज्यूम इंडिया ने एक्सपोर्ट किया यूएस को, लेट अस एज्यूम यूएस कहां पे है, इंडिया के बाहर है। बेटा इंडिया के बाहर है तो वी कैन नॉट टेक एनी चार्ज, वी कैन नॉट चार्ज एनी टैक्स, ये ध्यान देना। इसलिए एक्सपोर्ट क्या होता है, नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है। Why it is exempt? Exempt means no GST. Why no GST? Because consumption is not in India, so no GST. But अगर इंडिया ने इंपोर्ट किया, प्लीज ध्यान देना, इंडिया ने इंपोर्ट किया, किससे इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट किया, तो गुड्स कहां पे कंज्यूम्ड हुआ, इंडिया में कंज्यूम हुआ, तो जीएसटी लगेगा। तो इन शॉर्ट इंपोर्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इसलिए एप्लीकेबल होता है बिकॉज गुड्स इंडिया में कंज्यूम्ड हुआ है। और इंडिया से अगर यूएस गुड्स जा रहा है तो गुड्स कंज्यूम कहां पे हुआ, सर्विस कंज्यूम कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया, इट इज नॉट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज नॉट विद इन द इंडियन बाउंड्री। सो यहाँ पे जीएसटी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड देयर आल्सो, दैट इज व्हाट मेंशन्ड देयर आल्सो। व्हाट इज गिवन, Export are non-taxable because the place of consumption is outside India, and imports are taxable because the place of consumption is in India. So मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, जीएसटी कब चार्ज होगा, जब ये सप्लाई होगा। सिर्फ सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, वो गुड्स और सर्विसेज का भी होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए, तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, जिस जगह पे वो कंज्यूम्ड होगा वहीं पे टैक्स लगेगा, ध्यान देना है। At present, India follow the principle of origin-based tax. It is a dual GST. Dual GST means when GST comes, it comes on 50-50 formula. 50-50 formula मतलब 50% central लेगा, 50% state. It can be state or it can be union territory also. तो 50-50% formula को हम लोग बोलते हैं dual based consumption, dual GST. Now, we go ahead now. Yes. Now, GST levied by, अगर कोई भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, इट इज कॉल्ड एज एसजीएसटी। अगर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगा उसको एसजीएसटी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगा एसजीएसटी। इफ यूनियन टेरिटरी चार्ज करेगा, यूनियन गवर्नमेंट चार्ज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूटीजीएसटी, यूटीजीएस, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इफ GST levied by central government, it is CGST, CGST, state government, it is SGST, union territory, it is UTGST. ये ध्यान दो। अगर IGST कब अप्लाई होगा, IGST तब अप्लाई होगा when there is a interstate supply, when there is a interstate supply। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स दो स्टेट के बीच में हुआ है, तो झगड़ा दो स्टेट के बीच में होगा। ये दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा और मैं उसी स्टेट को टैक्स दूंगा जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम्ड हुआ है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल भी दिया हुआ है। सो दिस वुड बी एप्ली कलेक्टेड बाय द सेंटर
so that the credit change is not disrupted. So there should not be any problem between two different states कि tax का revenue कौन collect करेगा. Import of goods would be treated as IE, that is integrated state supply, and would be subjected to IGST. मैंने पहले ही बताया था अगर आप import भी करते हो तो आपको GST लगेगा, but with GST it is IGST. Though it is coming from different country, but for starting from GST point of view, assume it is a other state, assume it is, though it is not a other state, but हम उसको interstate करके मान के चलते हैं, IGST अप्लाई करते हैं. हमारे इंडिया में जीएसटी में देयर आर 4 टाइप ऑफ टैक्सेस. वन इज सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी कलेक्ट करता है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और 50% डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टेट को देना है, यूनियन टेरिटरी को देना है, वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन बेस. जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड हुआ है उसी को देगा, अदरवाइज नॉट. जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. जीएसटी कभी भी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अप्लाई नहीं होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 5 प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी अभी तक आया नहीं है. पॉसिबिलिटी जीएसटी में कम इफ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड. अगर जीएसटी काउंसिल बोलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट पे भी क्या आ सकता है, जीएसटी आ सकता है. नाउ व्हिच आर द 5 प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? वन इज क्रूड ऑयल पे जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, डीजल पे नहीं लगता है, एटीएफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है. एंड ये अप्लाई हो सकता है अगर जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करे. जीएसटीसी का मतलब होता है जीएसटी काउंसिल. नाउ व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? बेटा जीएसटी काउंसिल एक कमिटी है जो फॉर्म्ड हुआ है विद द मेंबर्स, फॉर्म्ड बाय द मेंबर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. हम लोग आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल होता क्या है. Tobacco and tobacco product would be subject to GST. अभी तक tobacco product पे GST नहीं आया, but possibility वो आ सकता है, अभी तक आया नहीं है. All export, जैसे मैंने बोला GST एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? बिकॉज एक्सपोर्ट करते वक्त गुड्स कंज्यूम्ड कहाँ पे होता है? आउट ऑफ इंडिया के बाउंड्री के बाहर होता है, इसलिए हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करते. एंड एट द सेम टाइम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है. नाउ व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? चलो मैं आपको बता देता हूं. इंडिया में ऐसे 6 to 7 प्लेसेस है, 8 to 10 प्लेसेस है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं. जैसे हमारे मुंबई में विले पार्ले कम्स अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरियाज होते हैं जहां पे गवर्नमेंट एंकरेज करते हैं बिजनेसमैन को कि आप आओ इस एरिया में और बिजनेस करो. हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, जो सब्सिडीज देंगे, कंसेशन देंगे, जो हम लोग को एक बिजनेसमैन को देने पड़ते हैं. बट द कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाई. बेटा हर बेनिफिट के लिए कंडीशंस होती है. उन्होंने कंडीशन क्या रखा? अगर आप मान लो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना बिजनेस करते हो तो मैक्सिमम चीजें आपको कंसेशनल और सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा. सब्जेक्ट टू आपको आपके प्रोडक्शन का 90% से अबव प्रोडक्शन, 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. अगर कंडीशन हाँ है तो आप आ सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट ने क्या किया है? उन बिजनेस को एंटरटेन करते हैं जो हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करते हैं. कंडीशन सिर्फ एक ही, आपको 90% से ज्यादा प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली कंडीशन. अगर आप नहीं कर पाए तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निकल जाना पड़ेगा. So government are providing a lot of facilities for especially those dealers who are coming under special economic zone. Now, all the GST form सबके सब पहले GST आने से पहले वैट फॉर्म अलग अलग डिपार्टमेंट में फिल करते थे और वो भी हार्ड कॉपी फिल करते थे. नाउ GST आने के बाद सारे के सारे जो टैक्सेस है वो आप ऑनलाइन ही पे करते हो, ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करते हो, ऑनलाइन ही पे करते हो, और सारे के सारे एक ही विंडो पे होते हैं. अर्लियर क्या होता था? वैट का विंडो अलग है, वैट की बिल्डिंग अलग है, वैट का डिपार्टमेंट अलग है, सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट अलग है, एक्साइज का डिपार्टमेंट अलग है, कस्टम का डिपार्टमेंट अलग है. बट अंडर जीएसटी इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल द रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड अंडर वन विंडो ओनली. ये ध्यान देना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्लास ऑफ पर्संस. नाउ यहाँ पे जीएसटी का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन नेफ्ट और आरटीजीएस ऑल्सो. और यहाँ पे पर्सन खुद भी सेल्फ एसेस कर सकता है, ये भी ध्यान देना है.
ना तो सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन आएगा कि सर जीएसटी किसको लगेगा। बेटा जीएसटी उसी पर्सन को लगेगा जो जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। ना किस पर्सन ने जीएसटी कराना चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने सेक्शन 22, 23 एंड 24 आप पढ़ोगे, जिसमें सेक्शन 22 में दिया हुआ है पर्सन लाइबल फॉर जीएसटी। उन्होंने कुछ कंडीशन दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं कि वो कंडीशन होगा तो ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। देर आर डीलर जिनको कंडीशन में नहीं आता है, उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है क्योंकि उनका टर्नओवर लिमिट कम है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, सेक्शन 20 में ऐसा दिया हुआ है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, ओनली सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो तो आपको 20 लाख का लिमिट है। अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करो तो आपको 40 लाख का लिमिट है। उसमें भी कंडीशंस है, 20 लाख का और 40 लाख का, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन, आप कौन से स्टेट में आते हो, डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दैट डिपेंड्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का भी कॉन्सेप्ट वहां पे आप पढ़ोगे। अगर पर्सन का टर्नओवर, लेट अस अज्यूम आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र का कंडीशन बताता हूं मैं, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बट मैं ये भी बता देता हूं, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे भी डीलर्स है जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, बट स्टिल उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम कंडीशन है, बट जिसको कराना है उसको जरूरी नहीं कि 40 लाख से रुकने का जरूरत है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आप बोलोगे सर जीएसटी वो करा क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा वो जीएसटी इसलिए करा, रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसको अच्छे कंपनी से बिजनेस मिलेगा। कोई भी बड़ा कंपनी ऐसे पर्सन से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करेगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छे बिजनेस मिलने चाहिए, उसने इसलिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिटेशन है जरूर, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि भले वो लिमिट में नहीं आता है बट वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और कराते भी है बहुत सारे लोग, बिकॉज दे वांट अ बिजनेस फ्रॉम गुड पीपल, फ्रॉम गुड बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनी से बिजनेस के लोग करवा देते हैं। नाउ सर जीएसटी का एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने बोला हमें प्लस पॉइंट, हमेशा जब एडवांटेज की बात आती है तो हम लोग एक ही बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वन नेशन वन टैक्स, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जीएसटी आने से पहले। अगर आपको कोई कार महाराष्ट्र में खरीदनी है, टैक्स रेट ज्यादा है, वही कार अगर आप गुजरात से खरीदोगे, पंजाब से खरीदोगे, दिल्ली से खरीदोगे, रेट ऑफ टैक्स कम है। तो लोग क्या खरीदते थे, महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरे स्टेट से टैक्स कार परचेस करते थे। क्यों परचेस करते थे, बिकॉज अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। जीएसटी आने से अभी आप कोई भी स्टेट में जाके कार परचेस करो, सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स। अगर आपको कार परचेस करना है, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाओ, आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में जो टैक्स पे करो वही टैक्स आपको आगे भी पे करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल पहले होता था कि अब अलग अलग अपना हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट करता था, पर अंडर जीएसटी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कहीं पे भी परचेस कर सकता है, ही विल बी हैविंग सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। सो यहाँ पे हैरेसमेंट जो होता है कंज्यूमर का, इवन डीलर्स का, वो कम हो गया। नो कास्केडिंग इफेक्ट, बेटा अंडर वैट क्या होता था, टैक्स पे टैक्स चार्ज होता था। नो कास्केडिंग मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, बट अंडर जीएसटी टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। जितना वैल्यू एडिशन आप करोगे सिर्फ उसी पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो जीएसटी का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट है टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, और इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को मिलता है। इसका फाइनल बेनिफिशियल कौन है, सिर्फ कंज्यूमर है, बिकॉज सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी कौन बेयर करता है, हमारे जैसे कॉमन कंज्यूमर बेयर करते हैं। इजी टैक्स कंप्लायंस, बेटा अभी पहले क्या होता था, अंडर जीएसटी, अंडर ओल्ड वर्जन, अंडर ओल्ड टैक्स सिस्टम, एक्साइज पे करना है तो एक्साइज अथॉरिटी के पास जाओ, सर्विस टैक्स पे करना है तो सर्विस टैक्स के पास जाओ, सेल टैक्स पे करना है तो सेल्स अथॉरिटी के पास जाओ। तो बट जीएसटी में देयर इज ओनली वन टैक्स, वन अथॉरिटी एंड वन विंडो। एक ही विंडो पे जाके आपको तीनों के तीनों टैक्स पे करने हैं। तो यहाँ पे पर्सन को भी, यहाँ पे पर्सन का मनी भी सेव हो गया, टाइम भी सेव हो गया, इवन एनर्जी भी सेव हो गया। Now he is not likely to run between different person, उसको हर टाइम पे अलग अलग पर्सन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जीएसटी आने से पहले क्या होता था, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता था, स्पेशली जो लोग जो ट्रक से गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जाते थे, वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि दैट हम लोग को हैरेस किया जाता था। हमको हैरेस कैसे किया जाता, चेक पोस्ट पे हमको रुका के रखते थे, जानबूझ के डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। बट जीएसटी आने के बाद
now there is no check post. Now there is no check post. Now there is no check post on state border, because it is, this problem is solved by e-way bill. Now what do you mean by e-way bill? Again, you are having this topic, this concept in semester 6. Whenever there is a movement of goods from one state to another state, जो भी बड़े बड़े, पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले ये जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो काफी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स फाइल्स में लेके जाते थे, और वो चेक पोस्ट पे जाके उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस को वो डॉक्यूमेंट दिखाते थे, वेरीफाई करने के बाद ही उसको आगे छोड़ा जाता था, और ट्रक के पीछे ट्रक खड़े रहते थे। इससे क्या होता था, बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम होता था, जो डिलीवरी 2 दिन में मिलना चाहिए था वो 8 दिन लग जाता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। पर जीएसटी आने के बाद 2 दिन का काम 2 दिन में ही होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सारे के सारे रिजॉल्व हुए जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ बैरियर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स जीएसटी आने से पहले, बट अंडर जीएसटी सारे के सारे चेक पोस्ट हटा दिए गए हैं, एंड देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू another states, and the entire country has become a one market. One market means आप कहीं पे भी जाओ, same rate of tax, that's it, no problem. किसी भी स्टेट में मूवमेंट करो, सेम रूल्स है। इट इज नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टेट्स। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे मैंने बोला, मान लो महाराष्ट्र से मुझे दिल्ली जाना है, जहां पे 2 दिन लगता है वहां पे 8 दिन लगा। अभी 8 दिन मुझे बताओ, ट्रक वाला जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिससे मैंने सर्विसेज दी है वो 8 दिन का रेंट लेगा मुझसे, 8 दिन के चार्जेस लेगा। ड्राइवर्स बट ऑब्वियस है 8 दिन के वेजेस लेगा। तो जहां पे 2 दिन का चार्जेस पे करना था फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ड्राइवर वेजेस, वहां पे मुझे 8 दिन का चार्जेस पे करने पड़ते थे बिफोर जीएसटी। बट आफ्टर जीएसटी जहां पे अभी 2 दिन लगता है तो 2 दिन ही लगता है। तो इससे क्या हो गया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव हो गया और मेरा टाइम भी बच गया। तो यहाँ पे इन सेल टैक्स एरिया, ही इज टॉकिंग अबाउट वैट, he's talking about VAT, CST, lot of time was wasted in check post or Octroi Naka, but in GST, check post and Octroi Naka was dismantled, resulting in reduction of time and cost of transportations also. यहाँ पे time भी बच गया and at the same time transportation भी बच गया। Corruption, I don't want to put any comments, but people who are having experience always says that there is a corruption. हम लोग को जाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट जीएसटी आने के बाद देयर इज नो सच करप्शन। अभी तक कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लाइक चेक पोस्ट एंड एज सच ऑक्ट्रा नाका वेयर द ट्रक ड्राइवर आर बीन स्टॉप्ड एंड आस्क्ड फॉर सम मनी और व्हाटएवर द केस मे बी। सो मोस्ट ऑफ द ऑक्ट्रा एंड चेक पोस्ट वेयर द कंप्लेंट ऑफ हैरेसमेंट एंड करप्शन आफ्टर डिसमेंटलिंग ऑफ नाका एंड चेक पोस्ट, दिस हैज बीन स्टॉप्ड। तो ये डिसमेंटलिंग, ये करप्शन पूरा का पूरा स्टॉप हो गया है only after coming GST, only due to introduction of GST. Various form, पहले क्या होते थे, under CST and VAT and under service tax we used to fill different forms. Like यहाँ पे दिया है फॉर्म सी, अगर आपको कंसेशन चाहिए तो ऐसा कोई फॉर्म्स कंसेशन रेट का अलग अलग फॉर्म टैक्स होता था, बट अंडर जीएसटी देयर इज नो सच फॉर्म। आपको जो भी टैक्स पे करना है जीएसटी पोर्टल पे जाओ, जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद आप जो भी ऑनलाइन टैक्स की लायबिलिटी आप पे कर सकते हो यूजिंग ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एज सच देयर इज नो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप घर पे बैठ के रिटर्न फाइल कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट एंड योर पोर्टल, सब्जेक्ट टू यू शुड हैव अ जीएसटी नंबर। सो बेटा जीएसटी नंबर के लिए आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किन लोगों के लिए, जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है। मैंने आपको बोला था महाराष्ट्र में अगर आप गुड सप्लायर हो तो आपको 40 लाख से ज्यादा रहेगा टर्नओवर पूरे साल का, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको ये पोर्टल पासवर्ड मिलेगा, जीएसटी नंबर मिलेगा और अपने जो भी डिटेल्स है वो जीएसटी पोर्टल पे आप फाइल कर सकते हो। सो देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एज सच। पहले जो वहां पे हमको जीएसटी ऑफिस में जाके फॉर्म सबमिट करने पड़ते थे फिजिकली, वो सारे के सारे भी अवॉइड हो गए। मतलब वहां पे आपका टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया, एनर्जी भी बच गया। एंड सेम यहाँ पे गवर्नमेंट को एक काइंड का रेवेन्यू भी मिलता है। Now what are the disadvantages? What are the disadvantages we have under GST? Earlier क्या था, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी टैक्स किसी भी गुड्स पे चार्ज कर सकता था, बट अंडर जीएसटी now the state government is not having sole authority to take any decision on GST. अगर डिसीजन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में लेकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा रिलेटेड टू जीएसटी। पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट में वैट था तो एमवैट था, दैट इज महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पूरा ऑटोनॉमी था, उनको अगर टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, कम करना है तो कम करना है टैक्स से कम चार्ज करना है तो कम टैक्स कर देते हैं। वो ऑटोनॉमी, वो कंट्रोल जीएसटी आने के बाद चला गया। अब इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट टू चेंज सम टैक्स
तो दे कैन नॉट डू फॉर दोस गुड्स विच कवर्ड अंडर जीएसटी। ये ध्यान देना। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए, आपको जीएसटी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे रिटर्न आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, जैसे कि जीएसटी 1 है, जीएसटी 2 है, जीएसटी 3 है, जीएसटी 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर आप एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो अलग पर्सन के लिए अलग अलग फॉर्म्स है। और ये सारे के सारे लोग कैसे करते हैं, जीएसटी रिटर्न पूरा ऑनलाइन फाइल करते हो, और ऑनलाइन सारी इंडिया एट अ टाइम पूरा ऑनलाइन फाइल करते हो, तो सर्वर कभी कभी काम करना बंद कर देता है, एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइल द रिटर्न, स्पेशली ऑन दोज डेट विच इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। सो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल मेनी पीपल ट्राई ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एंड पूरा सर्वर क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। So GST compliance is IT based. Slowdown of IT system create lot of difficulty for filing GST return and GST payment. Implementation issue. बेटा GST तो लोगों ने लाया हुआ है. Many people says कि GST सिर्फ कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है. Difficulty in implementation. Some of the provision like RCM. Now what is RCM? Reverse charge mechanism. Under reverse charge mechanism में normally हमारे इंडिया में हम FCM फॉलो करते हैं ना. व्हाट इज FCM? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वेयर नॉर्मल रूल क्या है, अगर कोई डीलर आपको गुड सेल कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. बट अंडर RCM गवर्नमेंट बोलता है रेसिपिएंट को, अगर आप बिजनेसमैन हो और आप ऐसे पर्सन से गुड्स परचेस करो जो जीएसटी नहीं देता है, ऐसे गुड्स पर्सन से गुड्स परचेस करो जो जीएसटी नहीं देता है, तो आप क्या करो, खुद जाके उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स पे करो. तो हियर द कंज्यूमर और वी कैन से रेसिपिएंट पेइंग द टैक्स on behalf of supplier directly to the government. So here also we are having a question on RCM also. In a further topic you'll be learning this thing on detail, maybe in further studies. Frequent changes. नॉर्मली जीएसटी लॉज में हमेशा हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है. एवरी ईयर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते ही रहता है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, मे बी रिलेटेड टू एग्जेम्पशन, मे बी रिलेटेड टू change of tax rate, may be related to threshold limit. There are a lot of changes normally taken place in case of section as well as rules. So it creates a lot of confusion because many people are unaware about this amendment and they keep on following the old rule. और बाद में पता चलता है कि मैंने जो टैक्स चार्ज किया था वो 5% से चार्ज किया था, बट गवर्नमेंट ने उसको 18% कर दिया, तो बेचारा बीच में फंस जाता है. तो इट क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस. हमारे जीएसटी में there is not only one rate of tax, there is n number of tax. Nil rate of tax है, zero rated tax है, 5%, 18%, even 12% and 28% tax. तो वेरिएट टैक्स रेट है. तो पीपल नेवर नो कि जब ये गुड्स बाय कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, समटाइम डीलर्स डोंट नो कि जो गुड्स सप्लाई कर रहा है उस पर 0% है, 5% है, 18% है, 12%, 28% है. ये ध्यान रखना. सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंज्यूमर, दैट इज रेसिपिएंट एज वेल एज सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू. Now next point is GST Council. सर GST काउंसिल क्या है? ये GST काउंसिल ये कमिटी है. GST काउंसिल इज अ कमिटी. जो फॉर्म कौन करता है? ये कमिटी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में आके एक कमिटी मीटिंग फॉर्म, ज्वाइंट फोरम फॉर्म करता है. और ये मीटिंग फॉर्म करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट को है. और उस कमिटी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल. ये कमिटी में कौन कौन होता है? ये कमिटी में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है. हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैम है, शी इज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल. एंड इवन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट. ये काउंसिल में हर एक स्टेट का नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर उस पर्टिकुलर स्टेट का होता है या टैक्सेशन से रिलेटेड होता है. टैक्सेशन सेक्शन से रिलेटेड जो मिनिस्टर होता है वो मेंबर होता है. बट द राइट्स किसके पास है? उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होता है कि उसको उस पर्टिकुलर काउंसिल का मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर को बनाना, उस पर्टिकुलर स्टेट के टैक्सेशन मिनिस्टर को बनाना या किसी और पर्सन को बनाना. राइट्स लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. बट नॉट जनरली मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन उस पर्टिकुलर स्टेट का होता है. पर जरूरी नहीं कि वही बनेगा, कोई और भी बन सकता है, डिपेंड करता है
ये पावर सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होता है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज ऑल्सो अ मेंबर। नेक्स्ट नाउ बेटा, डिसीजन नॉर्मली लिया जाता है लेते वक्त, एक डिसीजन लेते वक्त वो एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला दे टेक द डिसीजन। डिसीजन फाइनल तब होगा जब ये फॉर्मूला के थ्रू वो सक्सेसफुल होगा। नाउ what he says, let us assume GST council meeting is going on. GST council is meeting going on. ये ध्यान देना, as you all knows, there are total 28 states and 9 union territories in India. 9 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, बट उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली है और उसमें एक पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी डिपेंड अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, द वे यू प्रोनाउंस पौंडीचेरी, दिस बोथ यूनियन टेरिटरी हैविंग देयर ओन चीफ मिनिस्टर। सो ये भले यूनियन टेरिटरी है बट दे ऑपरेट और रन एज, जब भी जीएसटी हम पढ़ेंगे तो हमको उसको मान के चलना वो स्टेट है। रीजन इज दिस बोथ द यूनियन टेरिटरी हैज हैविंग देयर ओन चीफ मिनिस्टर्स। दैट इज फॉर दिल्ली इट इज अरविंद केजरीवाल एंड even Pondicherry is having their own that is chief minister. So along with 9 union territory, out of 9 these 2 union territory becomes what it assumed to be state whenever we learn about GST। GST में उसको union territory नहीं बोलना है, GST में उसको हम लोग को state ही बोलना है। तो नॉर्मली इन ऑल अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी से एक मेंबर आता है, स्टेट्स हर एक स्टेट के एक मेंबर रहता है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से एक मेंबर होता है। इन ऑल करके ऐसे जो भी मेंबर है इस पर्टिकुलर काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, कमिटी मेंबर्स होते हैं। जब भी कोई जीएसटी मीटिंग होती है कम से कम 50% अटेंडेंस, 1/2 मतलब 50% अटेंडेंस होना जरूरी है उस पर्टिकुलर कमिटी में, 50% अटेंडेंस होना जरूरी है। और डिसीजन टेकन इन जीएसटी वुड बी टेकन बाय मेजॉरिटी, नॉट लेस दैट इज 3/4 ऑफ टोटल वोट कास्ट। 3/4 ऑफ टोटल वोट कास्ट मतलब 75% वोटिंग फेवर में होगा, हाँ में होगा, तो ही वो पर्टिकुलर डिसीजन को फाइनल किया जाता है। ये ध्यान देना, अप्रूव किया जाता है। और सेंट्रल लोगों के पास 1/3 राइट्स होता है, वेटेड एवरेज ऑफ टोटल वोट कास्ट, एंड स्टेट वालों के पास 1/2 ऑफ द वोट कास्ट होता है। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ पावर ऑन जीएसटी, बट जब भी डिसीजन की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास कम पावर रखा है डिसीजन के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज केप्ट द 2/3 ऑफ द वोटिंग राइट्स फॉर टेकिंग द डिसीजंस। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम्स है वो मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ बट द मेजॉरिटी इज डिसीजन अथॉरिटी इज विद द स्टेट, नॉट विद द सेंट्रल। सर जीएसटी काउंसिल क्या करता है? सर जीएसटी काउंसिल कौन से टैक्सेस चार्ज करने हैं, सब सेस चार्ज करने हैं, सब चार्जेस चार्ज करने हैं, लेविड बाय स्टेट, सेंट्रल और लोकल बॉडी, ये जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज वेदर टैक्स चार्ज करना है या एग्जेम्प्ट करना है वो भी जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया जाता है। अगर जीएसटी काउंसिल से कोई भी नया मॉड्यूल आना चाहता है, कोई नया अप्रूवल आना रहता है, वो भी जीएसटी काउंसिल में ही डिसाइड होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन का कितना होना चाहिए, एग्जेम्पशन का कितना होना चाहिए, वो भी जीएसटी काउंसिल में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल रेट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, ये भी नॉर्मली जीएसटी में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेट्स लाइक मे बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ हैवी रेनी सीजन, तो ऐसे केस में इवन जीएसटी काउंसिल अलाउ करता है उस पर्टिकुलर स्टेट पे कि आप अपना जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो बढ़ाओ, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करो, और जो भी लॉस हुआ इस पर्टिकुलर स्टेट में उस लॉस को कॉम्पेंसेट करो, और एक बार रिकवर होने के बाद अब वापस उस पर्टिकुलर रेट को नॉर्मल लेके आओ जो अदर स्टेट में चलता है। तो नॉर्मली ये स्पेशल राइट्स दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट को जो अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए? देयर आर टोटल 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स which comes under special category right now. Earlier there were total 11, now it comes to the 4. And there are still product, जैसे मैंने बोला 5 प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी अभी तक आया नहीं है, इन फ्यूचर आ सकता है। And what are the 5 products? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, सर जीएसटी किस किस पे नहीं लगा है? सर जीएसटी जिस पे नहीं लगा, जिसपे हम लोग एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, एक्साइज ड्यूटी हम किस पे चार्ज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टबैको, पेट्रोलियम। एक बात ध्यान देना है, जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है बट उस पे एक्साइज या कस्टम चार्ज होता है, ये ध्यान देना है। एक्साइज किस पे चार्ज होता है? सर एक्साइज उसी पे ही चार्ज होता है जो मैन्युफैक्चर होता है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होगा एक्साइज चार्ज होगा। कस्टम किस पे चार्ज होगा? कस्टम उस पे चार्ज होगा जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है।
जब भी आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, ये ध्यान देना है। सो एनी प्रोडक्ट ऑन विच द जीएसटी इज नॉट चार्ज, नॉर्मली उसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, आइदर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। नाउ एंड जीएसटी नेटवर्क बेटा ये एक प्राइवेट कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज अ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म्ड हुआ है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, incorporated in March 2013 with the authorized capital of 10 crores। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट इसका मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को सर्विस देना। That is, whatever the job is going to do, is going to make non-profit making. Is going to run as a non-profit making organization. His main object is to provide IT-based services only to government, and that too related to GST. सिर्फ GST से रिलेटेड ही वो सर्विस देगा, और बाकी किसी को भी वो थर्ड पार्टी को सर्विस नहीं देता है। अगर आपको GST नेटवर्क, इनका पोर्टल है www.gst.gov.in पे जाओ। जो भी GST, जिनके पास GST नंबर है, वो अपना जीएसटी रिटर्न इस पोर्टल पे जाके ऐड करके अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते। इट कैन बी GST 1, इट कैन बी GST 2, इट कैन बी GST 3, डिपेंडिंग देयर आफ्टर कौन से कैटेगरी में वो आते हैं, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, एंड लास्ट एक फाइनल सबमिशन भी होता है, एनुअल रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड फंक्शन ऑफ जीएसटीएन का मेन फंक्शन क्या है, ये पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का मेन फंक्शन क्या है, किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसी को रिटर्न फाइल करना है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिटर्न इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके फाइल कर सकता है। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इसी वेबसाइट जीएसटी काउंसिल सॉल्व, अपना जीएसटी नेटवर्क सॉल्व करता है। इट्स अ प्राइवेट कंपनी। मिसमैचिंग ऑफ पेमेंट विद डीलिंग विद अ बैंक नेटवर्क, अगर कोई पेमेंट मिसमैच हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स को एज अ कंज्यूमर, जब भी मैंने किसी से परचेज किया था, मैंने टैक्स पे किया था, सामने वाले ने कुछ और बताया, उसका टैक्स मैच नहीं कर रहा है या मैच कर रहा है, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का भी काम जीएसटी www.gst, that is GST नेटवर्क पे होता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ MIS टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अबाउट रिलेटेड टू टैक्स पेयर, कौन ईमानदारी से टैक्स पे करता है, नहीं करता है, एंड अदर रिवर्सल एंड क्लेमिंग ऑफ ITC एंड अदर थिंग्स। So this is just a basic introduction of indirect tax and as well as GST. So if any questions, if you can ask me, you can. Amol sir. Amol sir. So one question came from Pendarkar, is BAF के students MCQ practical कैसे देंगे? Can please repeat the question because I don't have any idea what exactly the question is being asked. One question is from Ashwini Rathod. Sir, if goods supply to in Delhi and consumers also receive that product in Delhi, so which government is to collect the tax? Ashwini beta, I'm not clear with the question. I just want to ask कि वो goods किसी और state से आया था या Delhi state से ही Delhi states में आ रहा है? Remember one thing, अगर consumer goods Delhi में consume कर रहा है, तो Delhi government have a right to collect the, that is SGST, that is states, that is SGST Delhi government को मिलेगा और CGST state government लेगा. Then Goswami has asked me one question, Subhadra Goswami, if the goods supply yes, Subhadra Goswami, you are correct. If goods supply हुए हैं दिल्ली से मुंबई and मुंबई goods consume कर रहा है, तो IGST का 50% मुंबई को मिलेगा. Yes, you are correct. But IGST collect करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में मुंबई को देगा. So how to return GST file, GSTR1 and GSTR2? Sanjana, I just want to tell you one thing. If maybe teacher, I'm really sorry if he is a teacher. GST1 and GSTR2 is not a return. Though it is called as a return, but it's not a return. It is just like a inward supply and outward supply. जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिटेल्स देना पड़ता है.
और ये भी आप लोग को ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है, और ये आप फाइल तब कर सकते हो जबकि आपके पास जीएसटी नंबर होगा। जीएसटी नंबर होने के बाद ही आप जीएसटी 1 जीएसटी 2 दे सकते हो। ये मंथली बेसिस पे किया जाता है, ये ध्यान देना। आपका जीएसटी 1 रहेगा तो सामने वाले का जीएसटी 2 होगा, वो मैच होगा, और मैच होने के बाद ही आपको आईटीसी का बेनिफिट होगा अगर आप रेसिपिएंट हो तो। संजना शिंदे, so filing data in which form, like Excel or in any other format? It is purely in online format and that too in norm. अभी सबके सब Excel format में ही करते हैं सारे के सारे record keeping, and whenever they are putting in online, they put in online. Yes, राजेश सर, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। राजेश सर, whatever the doubt was, मुझे समझा क्वेश्चन वो मैंने बता दिया। Questions on YouTube comment also after that YouTube is uploaded perfectly. Okay. Okay, sir, we can answer the further questions on YouTube comment only. For Sir, now, So मेरे okay. पास right now I'm not having any access of questions which is being asked on YouTube. So please can you help me out how to access the question asked on YouTube? See, after completing these sessions, Okay, afterwards we can do. Okay, Okay, sir. fine, sir. Thank you. Now we are turning to the part of vote of thanks, and I'm here again, Professor Amol Rajesh Shirke from Dr. Vishabhushan Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Model Degree College, Ratnagiri. First of all, I like to thank our associate college, KB Pindarkar College, who are giving the great technical support to us as we are conducting this online website, online lecture series with the combined organization of Model Degree College, Tayere and Ambedkar Ratnagiri. Today is the second day, and this is the ending point for this today's last session, which is allotted for the TY-BAF students in the subject of indirect tax. I like to thank Dr. Sachin Achrekar, sir. It was just a request, and sir agreed suddenly. Sir, thank you for your generosity and your approval. Sir gives us the enormous knowledge in aspects of indirect tax, the definitions and concept of indirect tax, how both taxes are different unto each other. And then sir gone through the different types of taxes, GST, the merits and advantages of merits, and a lot of knowledge, sir, you given to our students. We are very pleased to have you as a resource person today. Thank you once again, sir. Okay. So over to Tahir, sir. It's now time to concluding.